14 से कौन पढ़ेगा इसने? अब भैया पढ़ सकती हूँ, पढ़ूं? हाँ, शुरू करो आपने। Page number 14. Effect of the company of liars. I have known people who were very scrupulous, but all of a sudden, when together in a group, instead of speaking the truth, they would spontaneously tell a lie. They did not have the intention of doing so. They did not think of it a minute before doing it, but it came like that. Why? Because they were in the company of liars. There was an atmosphere of falsehood, and they had quite simply caught the melody. इसका किसी को अनुभव है तुमको कि भाई ये क्या हुआ अचानक? है ऐसा? है? हाँ भैया, बिल्कुल होता है। और जब मैं स्कूल जाती हूँ तब मेरे साथ बहुत होता है। मैंने बहुत बार ये चीज अनुभव किया है, क्योंकि बहुत प्रयास रहता है कि मतलब झूठ नहीं बोले, और बहुत कोशिश भी रहती है, लेकिन जब ऐसे लोग मिल जाते हैं और मतलब बोलते हैं ना कि एकदम से ऐसी उनके हाँ में हाँ मिला देना, और अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो हम भी उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, जबकि वो बात सही नहीं होती है। तो ये होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है इसको बहुत। बट मैं इस चीज के प्रति थोड़ा कॉन्शियस हो गई हूँ, तो मैं उतना ज्यादा वो नहीं करती। बट अगर हम अनकॉन्शियस रहते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो भैया होता है। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से इस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया है। इस बारे में कोई कुछ कहना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज तो साइंस ऑफ लिविंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे चलते हैं। लगता है भैया किसी को कुछ नहीं कहना है, तो अपने ये साइंस ऑफ लिविंग पे चलते हैं। हाँ, हाँ पढ़ो भैया इसको। आगे पढ़ते हैं। द साइंस ऑफ लिविंग. It is only by observing these movements of our being with great care, by bringing them, as it were, before the tribunal of our highest ideal, with a sincere will to submit to its judgment, that we can hope to educate in us a discernment which does not err. One must be clearly aware of the origin of one's movements, because there are contradictory velities in the being. Some pushing you here, others pushing you there. And that obviously creates a chaos in life. If you observe yourself, you will see that as soon as you do something which disturbs you a little, the mind immediately gives you a favorable reason to justify yourself. This mind is capable of gilding everything. In these conditions, it is difficult to know oneself. One must be absolutely sincere to be able to do it and to see clearly all the little into all the little falsehoods of the mental being. If in your mind you go over the various movements and reactions of the day, like one repeating indefinitely the same thing, you will not progress. If this
Reviewing is to make you progress. You must find something within you in whose light you yourself can be your own judge. Something which represents for you the best part of yourself, which has some light, some goodwill, and which precisely is in love with progress. Place that before you, and first of all, pass across it as at a cinema all that you have done, all that you have felt, your impulses, your thoughts, etc. Then try to coordinate them. That is, find out why this has followed that. And look at the luminous screen that is before you. Certain things pass across it well, without throwing a shadow. Others, on the contrary, throw a little shadow. Others yet cast a shadow altogether black and disagreeable. You must do this very sincerely, as though you were playing a game. Under such circumstances, I did such and such a thing, feeling like this, and thinking in this way. I have before me my ideal of knowledge and self-mastery. Well, was this act in keeping with my ideal or not? If it was, it would not leave any shadow on the screen, which would remain transparent, and one would not have to worry about it. If it is not in conformity, it casts a shadow. Why has it left this shadow? What was there in this act that was contrary to the will, to self-knowledge and self-mastery? Most often, you will find that it corresponds to unconsciousness. Then you file it among unconscious things and resolve that next time you will try to be conscious before doing anything. But in other cases, you will see that it was a nasty little egoism, quite black, which had come to distort your action or your thought. Then you place this egoism before your light and ask yourself, why has it right to make me act like that, think like that? And instead of accepting any odd explanation, you must search, and you will find in a corner of your being something which thinks and says, ah, no, I shall accept everything but that. You will see that it is a petty vanity, a movement of self-love, an egoistic feeling hidden somewhere, 100 things. Then you take a good look at these things in the light of your ideal. Is cherishing this movement in conformity with my seeking and the realization of my ideal or not? I put this little dark corner in front of the light until the light enters into it and it disappears. Then the comedy is over. But the comedy of your whole day is not finished yet. You know, for there are many things which have to pass thus before the light. But if you continue this game, for truly it is a game, if you do this sincerely, I assure you that in 6 months, you will not recognize yourself. You will say to yourself, what? I was like that? It is impossible. You may be 5 शुरू years से अब old. तक पर इसका शुरू से अर्थ देखते हैं. द साइंस ऑफ लिविंग, कि आपके जीवन का जो विज्ञान है, वास्तव में आप जो जीवन जी रहे हो उसका क्या विज्ञान है.
It is only by observing these movements of our being, हमारी being जो है उसके movements को, उसके जो क्रियाकलाप है, उसकी गतिविधि है, with great care, by bringing them as it were, मतलब मानो कि उनको बिफोर द ट्रिब्यूनल ऑफ आवर हाईएस्ट आइडियल, हमारा जो उच्चतम आदर्श है उसके सामने लाके किस तरीके से विथ ए सिंसियर विल टू सबमिट टू इट्स जजमेंट। और ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या है? जज, या एक सत्ता जो आपका निर्णय करती हो। वो निर्णायक सत्ता उसके आपका जो हाईएस्ट आइडियल है उसको आपने शीर्ष के ऊपर बिठा के, मतलब ऊपर बिठा के जज के रूप में, और सिंसियरली जितने भी आपके मूवमेंट्स हैं वो मूवमेंट्स उसके सामने आप रखते हो और उसकी लाइट के अंदर ये देखते हो कि कौन से जो मूवमेंट हैं वो उस आइडियल के अनुसार हैं, कन्फर्मिटी में हैं, और कौन से आपके जो मूवमेंट्स हैं वो कन्फर्मिटी के अंदर नहीं है। दैट वी कैन होप टू एजुकेट इन अस अ डिसर्नमेंट विच डज नॉट एयर, मतलब एक ऐसी विवेक शक्ति हमारे अंदर इससे उत्पन्न होगी, या उत्पन्न होने की हम आशा कर सकते हैं यदि हमने सच्चाई से ये प्रैक्टिस करी। क्या प्रैक्टिस करी? कि हम अपने जीवन में एक उच्चतम आदर्श, कि मेरा सच्चा आदर्श ये है, उस आदर्श के प्रकाश में एक एक मूवमेंट हमारी सत्ता के, क्योंकि शरीर अपने तरीके के मूवमेंट करता है। आपने एक आइडियल लिया अपने सामने कि मेरे को एक एथलीट बनना है या मेरे को एक क्रिकेटर बनना है। अगर कोई छोटा उद्देश्य भी आप लेके चलते हो या कोई पार्थिव उद्देश्य भी लेके चलते हो, तो उस उद्देश्य के लिए जो जो आवश्यक आपको एक्टिविटी करनी होगी, आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क उस तरीके का बनाना होगा। किसी को एक प्लेयर बनना है और वो सुबह समय पे नहीं उठता है, तो ये तो उसकी जो उद्देश्य है उसकी कंफर्मिटी के अंदर नहीं हुआ। तो उसको अपने मूवमेंट्स, जैसे लेजीनेस है वो नहीं चलेगी। अगर उसको इस टाइम एफर्ट करना है और उससे वो चूक जाता है, इसको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी फूड हैबिट्स हैं वो कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये एक्चुअल में उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपने जीवन के अंदर कोई उद्देश्य लिया है। भी सामान्यतः तो हम कोई उद्देश्य लेते ही नहीं ना। हम बचपन से, एक तो शिक्षा जिस तरीके की है वो तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि वो अगर शिक्षा हमको खत्म करने में सफल न हो जाए तो थोड़ी एस्पिरेशन बचती है किसी हायर आइडियल के लिए। पर अगर एक सामान्य हम अपना उद्देश्य माने जीवन के अंदर, उसके प्रकाश में भी, हालांकि उन उद्देश्यों की यहां बात नहीं हो रही, पर कोई बिजनेसमैन है, वो समय से अपने बिजनेस के ऊपर पहुंच नहीं सकता, डीलिंग सही कर नहीं सकता, जो उसके लिए आवश्यक जितनी क्रियाएं हैं वो अगर कर नहीं सकता, तो वो अपने उद्देश्य के अंदर, एक छोटे उद्देश्य के अंदर भी वो सफल नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा जो हाईएस्ट आइडियल है, हमने जो भी हाईएस्ट आइडियल, अपना जो एस्पिरेशन है, सपोज हमारी जो अभीप्सा है, उच्चतम अभीप्सा या आदर्श हमने अपने जीवन में स्थापित किया। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम एक स्थापित करें हाईएस्ट आइडियल, और उसको बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट करें हमारे लिए कि मेरा ये आइडियल है। अब उस आइडियल के प्रकाश में और सच्चाई के साथ, विशेष सिंसियर विल, सच्ची आप में ये संकल्प शक्ति हो, ये संकल्प आपने लिया कि आपके जो भी मूवमेंट्स हैं, कि आप कितनी बजे उठ रहे हो, कितनी बजे लेट रहे हो, क्या भोजन कर रहे हो, किस तरीके के आपके अंदर भाव आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं,
एक एक मूवमेंट को आप इंट्रोस्पेक्ट करके, कहने का अर्थ है उस आइडियल के सामने आप उन सारी चीजों को रख देते हो, उसके सामने से गुजारते हो, और वो जो निर्णय देता है, कौन देता है? वो ट्रिब्यूनल। कौन सा ट्रिब्यूनल? आपके हाईएस्ट आइडियल का, उच्चतम जो आदर्श है, सिंसियरली जब आप उसके सामने से इन चीजों को गुजारते हो, तो स्वतः ही उसका जजमेंट आता है, उसका निर्णय आता है कि ये वाली चीज आपकी इस हाईएस्ट आइडियल के अनुसार है, और ये वाली चीज इस हाईएस्ट आइडियल के अनुसार नहीं है। क्योंकि कितने सारी एक्टिविटी, इनफैक्ट सारे दिन अगर हम अपनी एक्टिविटीज को देखें और वास्तव में उनको और इस ट्रिब्यूनल के सामने से गुजारें, तो बहुत एक्टिविटीज तो तुरंत ही हमारी, और ये ट्रिब्यूनल कह देगा कि भी ये एक्टिविटी तो आपके आइडियल के खिलाफ है, और ये एक्टिविटी जो है ये इस आइडियल के कोई मतलब इससे डू अवे विथ कर सकते हो, आप इसको छोड़ सकते हो। तो वो जजमेंट के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और जब आप सिंसियरली ये करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज है, फिजिकली तो आप करोगे नहीं ना ऐसा कुछ, ये तो साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन है आपकी एक्टिविटीज का। तो जब ऐसा करते हो तब हम आशा कर सकते हैं किस चीज की? टू एजुकेट इन अस, हमारे अंदर एक ऐसी चीज उत्पन्न करें, एक ऐसा डिसर्नमेंट, एक ऐसी विवेक शक्ति उत्पन्न करें, तैयार करें, पैदा करें, डेवलप करें, विच डज नॉट एयर, जो गलती न करती हो। नहीं तो सारा जीवन इसी के अंदर चला जाता है। भाई बुद्धि की जहां तक बात है, तो लोगों के अंदर बुद्धि की कमी नहीं है, पर बुद्धि और विवेक शक्ति, जिसको वास्तव में हम विचार शक्ति की बात करते हैं, तो सामान्य विचार शक्ति तो कितने लोग हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने पॉलिटिशियंस हैं, वो मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट के इतने जबरदस्त लोग हैं जो पूरे के पूरे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरे देश की स्थिति को देखते हैं, कुछ इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। तो क्या बुद्धि की थोड़ी उनके अंदर प्रॉब्लम है? पर जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है ये रिफ्लेक्ट करने के अंदर वो चूक जाते हैं कि वास्तव में हमारा सच्चा आदर्श क्या है, उच्चतम आदर्श क्या है जीवन का। क्या जीवन एक इतने छोटे हेतु के लिए है? तो ये जब डिसर्नमेंट, ये जब आंतरिक दृष्टि उत्पन्न होने लगती है, उसकी यहाँ ये माँ बात कर रही है। तो ये जीवन का विज्ञान है, ये जीवन का रहस्य है कि यहाँ से हम ये डिसर्नमेंट एजुकेट करना शुरू करें, उसको उत्पन्न करना शुरू करें। वन मस्ट बी क्लियरली अवेयर ऑफ द ओरिजिन ऑफ वंस मूवमेंट्स। अब इसके लिए जब आप उसके सामने रखेंगे, तो आपको अपने मूवमेंट्स, जो आपके अंदर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, विचार हैं, भाव हैं, जिसको आप एस्पिरेशन भी कहते हो, कितनी सारी चीजें हमारे अंदर हैं पर वो घुली मिली हैं, ये भी नहीं पता चलता कई बार कि ये एस्पिरेशन सच्ची है या इसके छद्म रूप के अंदर पीछे कोई ऐसी चीज है जो हमको छल रही है एस्पिरेशन के नाम से। क्योंकि एस्पिरेशन अपने आप में सच्ची हो सकती है, पर अभी डिसर्नमेंट तो हमारा सच्चा नहीं है ना, उसको नजर आ नहीं रहा कि जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं वो कौन सा किस कैटेगरी का है, या उसका सच्चा शेड क्या है, सच्चा रंग क्या है। तो एस्पिरेशन है या हम जितने भी नाम लेते हैं, वो छद्म रूप के अंदर हमारे खुद की भावावेग हैं, हमारी जो पैशंस हैं, हमारी इम्पल्सेज हैं, वो ही ऐसे अच्छे अच्छे बाने पहन के आ जाते हैं और हमको मूर्ख बना देते हैं। इसलिए इस पथ के ऊपर चलने के लिए डिसर्नमेंट आपका एजुकेट हो, ऐसा डिसर्नमेंट जो गलती न करे। तो उसके लिए पहले तो आपको जिस रूप की वो चीज है, कि जो भेष किसी ने बना रखा है, उस भेष के पीछे कौन है, वो जब देखना जानोगे, तब उनकी जो माया है धीरे धीरे
उसको आप डिसर्न कर सकते हो। अदरवाइज तो आप ये समझ ही नहीं सकते कि कौन सी वेशभूषा के पीछे कौन कौन है। तो पहली चीज इसके अंदर ये है कि वन मस्ट बी क्लियरली अवेयर ऑफ द ओरिजिन ऑफ वंस मूवमेंट्स। हमारे जो मूवमेंट हैं, कि हमारे एक विचार आया या कोई क्रोध आया, अब हम उस क्रोध का कारण बताते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की, इसने ये काम किया इसलिए मेरे को क्रोध आया। हम इसी चीज को अगर इंट्रोस्पेक्ट करें तो सेम कारण हो पर व्यक्ति दूसरा हो, तो हमको वो ही भाव या वो ही क्रोध या वो ही प्रेम या वो ही सारी चीजें नहीं आती। सारी चीजें बाहर की आइडेंटिकल भी हो तो हम अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देने के अभ्यस्त हैं। इसलिए ये हमको देखना पड़ेगा कि जो हम कारण बता रहे हैं कि मेरे को ये क्रोध क्यों आया या इस समय मेरे को ये भाव क्यों आया, जो हम उसका कारण बताते हैं तो क्या वो सच्चा कारण है? क्योंकि किसी दूसरे सरकमस्टेंस के अंदर, किसी दूसरी वाकये के अंदर वो ही कारण भी मौजूद हो तो हमारी प्रतिक्रिया जो है बदल जाती है। इसलिए सबसे पहले तो हमारा जो मूवमेंट्स हैं उनके ओरिजिन, उसके बारे में हमको क्लियरली अवेयर, खाली अवेयर नहीं बोल रही माँ, बहुत स्पष्ट होने की जरूरत है कि ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ मेरे अंदर या ये प्रतिक्रिया क्यों आई मेरे अंदर से। बिकॉज देयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी वैलिटीज इन द बीइंग। कितनी सारी इच्छाएं या कामनाएं या ऐसी चीजें हमारे अंदर छिपी हैं। कितने जने हैं वो ये चाहते हैं कि मैं संगीत सीखना चाहता हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मन के अंदर इतनी इतनी चीजें जमाए हुए हैं और वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे को शरीर को बहुत अच्छा बनाना है माँ के उपयोग के लिए, पर साथ में फिजिकल हैबिट इस तरीके की है, किसी के कोई चाय पीने की आदत है, किसी के जर्दा खाने की आदत है, किसी के सिगरेट पीने की आदत है, या जो जो जिस जिस तरीके की आदतें हैं, या मैं कह रहा हूं इतनी स्पष्ट रूप से इस तरीके की भी आदतें नहीं हैं, तो भी हम अपनी एनर्जीज को किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं कि हम जो हमारे शरीर को की एनर्जी को हमसे हर लेती है, हमसे छीन लेती है। वो भी कितनी एक्टिविटीज, क्रोध में हमारी कितनी एनर्जी चली जाती है, पैशंस में हमारी कितनी एनर्जी चली जाती है, डिजायर्स के फुलफिलमेंट में कितनी एनर्जी चली जाती है। आंख से कोई दृश्य देखते ही कितनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है। तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो तो एक और रह जाता है, और इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हमारे अंदर वैलिटीज, इतनी सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे का विरोध करती हैं। इसीलिए कुछ तो आपको इधर पुश करती हैं, कुछ आपको उधर पुश करती हैं, और जीवन में एक तरीके का केओस, विभ्रम, भ्रम की स्थिति चलती रहती है। आप चाहते एक चीज हो, कि आप अंदर से आप एक चीज चाहते हो, पर आपकी जो बाहरी क्रियाएं हैं वो उसका साथ नहीं देती हैं, और धीरे धीरे तो आप इतने इंसेंसिटिव हो जाते हो कि आपको ये पता ही नहीं लगता कि जीवन का उद्देश्य, जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, पर मेरी क्रियाएं तो उस उद्देश्य की खिलाफत करती होती हैं। तो इसलिए इस तरीके की चीजें हमारे जीवन में चलती रहती हैं, और इसी कारण हमारा जीवन वर्तमान में जैसा है वैसा है। हम निर्णायक रूप से जो उद्देश्य हमने ले रखा है उसकी ओर कितनी गति कर पाते हैं, कितनी स्लो मूवमेंट होती है हमारी हमारे उद्देश्य की ओर, उसका मेन कारण ही यही है कि हमारे अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी वैलिटीज, ऐसी जमी हुई इच्छाएं, कामनाएं अंदर जमी होती हैं, जिनमें कुछ तो आपको इधर धकेलती है, कुछ आपको उधर धकेलती है। तो अगर आपको इस तरीके से यही चीज चलती रहे कि कोई भी पकड़ के आपको किधर भी लेके चले जा सकता है, पूरे दिन में अगर एक जना भी आपको किधर भी पकड़ के लेके जा सकता है, तो वास्तव में तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। अपने गंतव्य तक तो, आप अपने गोल तक तो पहुंच ही नहीं सकते।
तो ये तो सारे दिन हमारे अंदर चलता रहता है। और ये चीज ऑब्वियस तब होती है जब हम कोई कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। तब देखो आप किस तरीके के विचार आते हैं, किस तरीके के भाव आते हैं। और जिस फ्रेमवर्क में हम, जिस सामाजिक ढांचे के अंदर हैं, हमारे खुद के जिस मनोवैज्ञानिक ढांचे के अंदर हम हैं, वास्तव में तो हम कभी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते ही नहीं। हम ये मानते हैं कि ये तो कंडीशंस ऐसी हैं जो आप स्वीकार करके बैठे रहते हो। और इसीलिए आपने उद्देश्य एक रख रखा है, पर ये सारी चीजें आपको इधर उधर करती रहती हैं और आप यू रीच नो वेयर, आप कहीं भी नहीं पहुंचते हो। भाई आपको, आपके 10 रस्सियां बंध रही हों और कभी कोई खींचे कभी कोई खींचे, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। और ये हमारे जीवन के साथ हो रहा है, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं समझने की कि हमारी प्रगति हो गई, पर वास्तव में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। खाली हम कलर देने की आदत सीख लेते हैं कि धीरे धीरे हम बहुत सा कलर लगाने लगते हैं चीजों के ऊपर। तो हमारे हाईएस्ट जो आइडियल है, उसके ट्रिब्यूनल के सामने हमको सिंसियरली इन चीजों को सबमिट करना होगा। और बिना संकोच के, अगर वो ये कहता है कि ये काला है तो उसको स्वीकार करो कि ये काला है, उससे छिपने की कोशिश न करें। मैं खाली ये सेंटेंस जो माँ कह रही है और उसके पीछे का थोड़ा थोड़ा जो अर्थ है, क्योंकि ये तो एक सब्जेक्टिव चीज है, ये हम सब के लिए एक सब्जेक्टिव चीज है। जितना हम करते हैं उतना हम आगे जाएंगे इसके अंदर, और हमारे जो बीइंग की कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे सामने स्पष्ट होने लगेगी। और शुरू में बहुत सुखद अनुभव नहीं है जब वो चीजें हमारे सामने आने लगती हैं, तब हमको ये लगता है अरे मेरे बीइंग में ये चीजें भी छिपी हुई हैं। तो बड़ा डिप्रेशन होता है कि अरे ये तो सारी जितनी भी कमियां हैं सारी नजर आने लग गई। पर उसके लिए भी माँ कहती है कि उससे डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, वो तो एक सफाई की प्रक्रिया है। इफ यू ऑब्जर्व योर सेल्फ, you will see that as soon as you do something which disturbs you a little, the mind immediately gives you a favorable reason। यही मैं कह रहा था कि धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, तो वास्तव में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो एक बड़ी क्वेश्चनेबल चीज है। पर एक चीज जो निश्चित रूप से हमारे साथ हो जाती है कि माइंड बहुत अच्छे फेवरेबल रीजंस देने शुरू कर देता है। तो माँ ये जो चीज कह रही है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कह रही। तो ये हमको पहचानने की जरूरत है कि हमारे साथ निश्चित रूप से ये हो रहा है और हम इसके बारे में कॉन्शियस बने। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं कि ये चीज मेरे साथ हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो निश्चित ही हो रही है, पर हमारे अंदर कितनी ये हो रही है उस विषय में हम थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस होने की कोशिश करें। तो माइंड क्या करता है कि तुरंत ही उसके लिए फेवरेबल रीजन देता है जस्टिफाई करने के लिए। और इनफैक्ट ये माइंड का एक कार्य भी है, मतलब ये फंक्शन है माइंड का, खराब नहीं है। आपके एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके की हम क्रियाकलाप करते हैं एकदम से वो अगर हमारी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाए तो शायद ही कोई होगा जो उसको सहन कर पाएगा या अपना बैलेंस मेंटेन कर पाएगा। इसलिए ये एक जरूरी है हमारे जीवन की रक्षा के लिए या हमारे जीवन को सुचारू चलाने के लिए। तो तुरंत ही ये प्रक्रिया साथ में आती है। जो आपके जितने भी एक्ट्स हैं, आप जो भी कोई खराब एक्ट कर लेते हो, तो भी माइंड तुरंत के अंदर ये कहता है कि नहीं भाई, इन परिस्थितियों में तो और आप कर भी क्या सकते थे। हाँ, अगर आप थोड़े बहुत सिंसियर हैं तो आपको अंदर से ग्लानि होती है, पर उसके लिए माँ कह रही है कि सही भाव ये होना चाहिए कि बजाय आप डिप्रेशन में जाओ, उसकी बजाय ये संकल्प हो कि माँ की कृपा को आप पुकारें, माँ की लाइट को, उनकी फोर्स को आप पुकार के उसके ऊपर विजय प्राप्त करें और ये संकल्प करें कि वो चीज दोबारा घटित न हो। तो ये तो एक पॉजिटिव मूवमेंट हो गया। पर अदरवाइज व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सिंसियर हूं,
इसलिए मेरे को बड़ी बेचैनी है, मेरे बीइंग के अंदर ये समस्याएं हैं। तो ये एक नेगेटिव तरीका है और ये आपको अंधकार से भर सकता है। इसका पॉजिटिव तरीका तो यही है कि जैसे ही आपको वो कोई कमी नजर आती है, उसको आप तुरंत माँ को ऑफर कर सकते हैं। माँ की फोर्स को, उनकी लाइट को बुला के, और उस कॉर्नर में जिसमें वो अंधकार है, या जो वो छोटी आदत है जो आपको बांधे हुए है, या जो चीज या भाव जो आपको उद्देश्य की खिलाफत करता है, वो तुरंत उसके अंदर माँ के प्रकाश को भरने की ये एक सारी साइकोलॉजिकल क्रिया है। दिस माइंड इज केपेबल ऑफ गिल्डिंग एवरीथिंग। गिल्ड करना किसको बोलते हैं? जो ये पानी चढ़ाते हैं ना सोने का, कि कोई भी पीतल की चीज है या किसी की भी चीज है उसको सुनहरा रंग दे देते हैं। तो ये माइंड इस तरीके का है, हमारी किसी भी एक्टिविटी को, और वो कैसा भी रंग दे देता है, उसको बहुत सुनहरे रंग दे देता है। क्योंकि अगर वो नहीं दे तो आप एक सुचारू जीवन, तरीके का जीवन हम जी रहे हैं, इतना सुखद तरीके से हम ये कैसे जी पाएंगे? इसीलिए जिस इग्नोरेंस में हम जी रहे हैं, उसको सुचारू बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि ये माइंड आपका आके तुरंत उसको गिल्ड कर देता है, उसको बहुत सुंदर सुंदर रंग प्रदान कर देता है। और ये किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, ये माइंड की एक्टिविटी है, ये माइंड का काम है, उसका फंक्शन है ये। माइंड जिसके पास भी है, तुरंत ही और आपके सोचे समझे बिना ही, बचपन से ही स्वतः ये काम आपके साथ होता है। माइंड ये प्रक्रिया करता है, उसका फंक्शन है, विकृति नहीं है, ये उसका फंक्शन है। तो इस बारे में हमको सचेतन होने की जरूरत है। ये बहुत ही भारी प्रक्रिया है, बहुत मेहनत की प्रक्रिया है। ये कैसे हो, ये तो इसके लिए पहली जो चाबी है वो है सिंसियरिटी, सच्चाई। वो नहीं है तो आप इसको शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास और कोई ये बाहरी चीज तो है नहीं, बाहरी रिसोर्सेस से, संसाधन से ये संभव है ही नहीं। ये सारी आंतरिक क्रिया है, और आंतरिक क्रिया निर्भर करती है आपकी सच्चाई के ऊपर। इसलिए इस प्रयोग की सफलता या विफलता, या ये प्रयोग ही अपने आप में सच्चाई के बिना शुरू नहीं हो सकता। वन मस्ट बी एब्सोल्यूटली सिंसियर। अब देखो कितना लॉजिकली सारे सेंटेंसेस चल रहे हैं जैसे ही आप इसके अंदर जाते हो। वन मस्ट बी एब्सोल्यूटली सिंसियर टू बी एबल टू डू इट। ये करने के लिए एब्सोल्यूटली सिंसियर होने की जरूरत है। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी मिलावट होगी, मतलब सिंसियरिटी तो आपको पूरी की पूरी चाहिए, तुरंत आपका डिसर्नमेंट क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं होगा, पर सिंसियरिटी तो पूरी चाहिए। भाई आप रोग को ठीक करना चाहते हो, ये सिंसियर आपके अंदर विल आ गई, तो ये विल आने से रोग तुरंत ठीक हो गया ये तो जरूरी नहीं है ना। हाँ, पर ये जरूरी है कि आप एक सही दिशा में आप जरूर बढ़ोगे। इसलिए एक सच्ची विल, एक सही दिशा में विल आना पहली आवश्यकता है। तो पहली आवश्यकता क्या है? एब्सोल्युटली सिंसियर विल आप में आ जाए, एंड टू सी क्लियरली इनटू ऑल द लिटिल फॉल्सहुड्स ऑफ द मेंटल बीइंग। और धीरे धीरे मेंटल बीइंग के जो फॉल्सहुड्स हैं उनको वो पहचान जाए। देखिए, पहले तो इसके अंदर आपके पास कोई ऐसा स्थान हो जो आपका करंट स्टेटस है, उससे जब तक ऊपर का स्टेटस या ऊपर की चीज आपके पास नहीं होगी, तब तक वास्तव में तो विवेक शक्ति लिमिटेड रूप से ही काम करेगी। क्योंकि जिस विवेक शक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इतनी भी लोगों के अंदर डेवलप्ड नहीं होती होगी, जो अपने जीवन की घटनाओं को, चीजों को, कितने अच्छे स्टोरी राइटर्स हैं, कितने अच्छे विचारक हैं, कितने हम न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या डिबेट्स के अंदर लोगों को सुनते हैं कि उनका विचार तो होता है। तो इसलिए हम ये तो नहीं समझ सकते कि लोगों के अंदर विचार नहीं होता। पर समस्या क्या आ रही है इसके अंदर, कि ये चीज होने के लिए
जिस सामान्य धरातल के ऊपर आप रह रहे हो, उससे ऊपर का या उससे गहरा धरातल आपके पास होगा, तब ही आप सच्चे रूप से इस डिसर्नमेंट को प्रभावी कर सकते हो। नहीं तो हम रात दिन आजकल देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरीके की डिबेट करते हैं, तो बौद्धिक क्षमता तो उनके अंदर है। आज जिस तरीके की एजुकेशन है, उसमें वो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी एनालिटिकल फैकल्टी है, उनकी जो बौद्धिक फैकल्टी है, रीजन करने की फैकल्टी है, उसको डेवलप किया जाए। पर वो करने के बाद भी जो जीवन का सच्चा विज्ञान है, जीवन का जो सच्चा रहस्य है, उसमें और इसमें तो बहुत अंतर है। इसीलिए जीवन का रहस्य जो है, जो श्री अरविंद कहते हैं कि आप बड़े से बड़े खाली एक जहां आप खड़े हो, उस केंद्र के चारों तरफ बड़े बड़े घेरे आप बनाते जाओ, और बड़ा आपने सर्कल बना दिया, उससे आप रहस्य पे नहीं जा सकते। उस रहस्य पे जाने के लिए आपको असेंड करना पड़ेगा, आपको अपनी गहराइयों में जाना पड़ेगा। और जो मैजिशियन है, जो डिवाइन मैजिशियन है, उस मैजिक को समझने के लिए मैजिशियन की बुद्धि में, उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। आप उसके मैजिक को एनालाइज करोगे तो आप कभी भी मैजिशियन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये एक मूलभूत समस्या है, जो हम जितना भी बाहरी विकास करते हैं, उसके अंदर ये चीज चूक जाती है। तो जो सच्चा डिसर्नमेंट है, इसलिए जितनी बौद्धिक क्षमता हम आज देख रहे हैं, तो भी डिसर्नमेंट एक मूल प्रश्न तो ये छूट जाता है कि ये सारा करने के बाद भी जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है, उसकी तो कोई बात करता ही नजर नहीं आता ना। कितने जो स्थूल लोग हैं उनकी तो बात छोड़ो, आध्यात्मिकता के नाम से भी कितने कितने स्कूल्स हैं, कितने कितने पंथ हैं, संप्रदाय है, विचारधाराएं हैं, कितने चैनल्स हैं आजकल, पर वो चीज गले नहीं उतरती। जिस प्योर स्पिरिचुअलिटी की जो माँ और श्री अरविंद फंडामेंटल जो बातें कर रहे हैं, कहीं सुनने ही नहीं मिलती ना। क्योंकि वो फिर भी उसी दायरे की बात करते हैं, बस वो शब्द स्पिरिचुअल तरीके के काम में लेते हैं, पर वो डिसर्नमेंट या जो प्रकाश हमको इन शब्दों से मिल रहा है, वो हम कितना भी मंथन, हम सारे दिन मीडिया में औरों में विचारों का जो बोmbardment देखते हैं, उसमें कहीं भी हमको ये चीज देखने ही नहीं मिलती। इसलिए ये जो चीज है कि डिसर्नमेंट, ये सच्चा डिसर्नमेंट तभी आ सकता है जब हम अपनी सत्ता की गहराइयों में और ऊंचाइयों के अंदर असेंड करेंगे, वो ही सारी चीजों को देख पाएगा। आप जब अपनी रूफ पे या छत पे चढ़ते हो, तो उससे आप थोड़ा, आपको नजरिया या नजारा थोड़ा एक साथ विहंगम दृष्टिकोण से देख सकते हो। वही जब आप एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हो, देखो आपको पूरी नजर के अंदर कितना एक साथ एक नजर में थोड़ा और एक्स्ट्रा व्यू जो है वो भर सकते हो। और आप ऊपर जाते हो या किसी दूसरे ग्रह पे जाते हो, तब देखो पूरी पृथ्वी आपके आंखों में आने लगती है। तो जब तक आप इस स्थिति से असेंड नहीं करते, या आपके पास कोई ऐसा कॉन्शियसनेस का स्टेशन नहीं है जिससे आप तटस्थ रूप से इस चीज को नहीं देख पाते, तब तक आप सच्चे रूप से डिसर्न नहीं कर सकते। खाली ये बैठ के सोचना कि ये एक्टिविटी मैंने करी तो इसके क्या मायने हैं, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो सकती। हाँ, टू स्टार्ट विथ आप करेंगे क्या, पर मैं ये कह रहा हूं कि माइंड में ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। If in your mind you go over the various movements and reactions of the day, like one repeating indefinitely the same thing, you will not progress. तो वो ही मूवमेंट्स, वो ही चीजें, जैसे सर्दी के अंदर वो ही भाव, वैसे ही हम वही कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। जैसे टेप, कोई रिकॉर्डर है, वो लगाते ही वही गाने बजने शुरू हो जाते हैं। देखो हमारे जीवन में भी जब उदासी छाती है तो वही टेप रिकॉर्डर फिर चालू हो जाता है। कोई प्रसन्नता की चीज है, फिर वही टेप रिकॉर्डर उस तरीके का चालू हो जाता है। तो अगर हम सारे टेप रिकॉर्डर्स को, सारों को देखें और विवेचन करें थोड़ा सा ऊपर उठ के, तो ये लगता है कि खाली जीवन का हमारा जो अनुभव है, थोड़े 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 एडअप होते हैं। बाकी मोटा मोटा टेप रिकॉर्ड तो वही चल रहा है जो 10 साल पहले चल रहा था। वही गाने बज रहे हैं, वही धुनें बज रही है।
कोई नजदीकी व्यक्ति मर जाता है तो वो टेप लग जाती है, आपके कोई फायदा हो जाता है जिसको आपको लाभ लगता है वैसी टेप चालू हो जाती है। तो आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं मोटे रूप से वो बदलती नहीं है, क्योंकि अभी तक मूल परिवर्तन आया नहीं हमारे बीइंग के अंदर। माँ की चेतना अभी तक ऑपरेट नहीं कर रही। इसलिए हमको लगता है कि हमने सर्टेन चीजों में प्रोग्रेस करी, क्योंकि आपका शरीर भी बढ़ रहा है, आपकी जो स्थितियां हैं, जैसे आप देखते हो सामाजिक स्थितियां हैं, जो राष्ट्र की भी कितनी सारी चीजें हैं, प्लस आपके जीवन के अनुभव हैं। आप रोज कुछ ना कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं, उनके अनुभव की राशि है वो आपकी बढ़ती जाती है, पर उसको आप कोई प्रोग्रेस नहीं कह सकते। या जो वास्तव में जिस प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं असेंड करने की, वो प्रोग्रेस वो नहीं है। यूं तो फिर किसी की भी प्रोग्रेस हो रही है। एक पशु भी जानता है कि एक छोटा बच्चा जो पशु का जिस तरीके से व्यवहार करता है, एक मैच्योर पशु है उससे अलग तरीके का व्यवहार करता है। वो जानता है कि भी ये तरीकों से मेरे को नुकसान हो सकता है, इस तरीके से मेरे को भोजन मिलेगा, इन स्थानों के ऊपर मेरे को नहीं जाना चाहिए। अगर इसको प्रोग्रेस बोले तो ये अनुभव वास्तव में जिस प्रोग्रेस की हम बात कर रहे हैं उसमें और इसमें अंतर है। इफ दिस रिव्यूइंग इज टू मेक यू प्रोग्रेस, यू मस्ट फाइंड समथिंग विद इन यू। अब ये वही बात आ गई जिसको मैं ऊपर इंडिकेट कर रहा था। तो तुमको एक ऐसे स्थान की, ऐसी कोई चीज की, ऐसे एक पोइज की एक आपको आवश्यकता है जिसके प्रकाश में, इन हुज लाइट यू योरसेल्फ कैन बी योर ओन जज, आप खुद अपने जज हो सकते हो। तो पहले तो आपको एक ऐसा प्रकाश, आपकी सत्ता का ऐसा कोई पोइज, कोई स्थान, कोई चीज, क्योंकि फिलहाल हम जिसको आकलन कहते हैं वो मैं पहले भी समझा चुका हूं कि वो आकलन से हम हमारे वर्तमान धरातल से ऊपर की उड़ान नहीं ले सकते। अगर वही उड़ान लेते तो हम तो शायद इतना मानसिक रूप से विकसित ही नहीं है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया के अंदर, वो तो आपको सोचने समझने के लिए इतना केपेबल बना देती हैं, इतना विकसित बना देती हैं कि आप बहुत वाइड दृष्टिकोण से पूरे देश की इकोनॉमी देख सकते हो। छोटे छोटे की चेंजेस से आप देख सकते हो कि देश में, देश के और इंटरनेशनल जो रिश्ते हैं आपके या चीज़ों में क्या फर्क होगा, वो लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। उनका माइंड इतना डेवलप्ड है। पर उस फैकल्टी के डेवलप होने को हम इस फैकल्टी के डेवलप होने से तुलना नहीं कर सकते। ये एक फंडामेंटल चेंज है, ये बहुत दूसरी चीज है। इसलिए ये कह रहे हैं ऐसा हमको एक प्रकाश होना चाहिए, या ऐसा एक जज हमारे खुद के अंदर ऐसा स्थापित हो जाना चाहिए, समथिंग विच रिप्रेजेंट्स फॉर यू द बेस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। भाई अभी हम कह देते हैं हमारा साइकिक या हमारी उच्चतम चेतना या जो भी हम नाम देते हैं, भाई हमारे लिए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अभी सोल भी बोल दो, चाहे सुप्रामेंटल बोल दो, कोई भी नाम ले दो, तो हमको कोई अंतर थोड़ी पड़ता है हमारे लिए शेड्स का। कि मेरे को अलग अलग ग्रहों के भी नाम ले दो कि चांद के ऊपर ऐसा है, मार्स के ऊपर ऐसा है, सैटर्न के ऊपर ऐसा, मेरे तो सारे ही बराबर हैं। इसलिए अभी जब हम कहते हैं कि ऐसा पार्ट जो हमारा बेस्ट पार्ट है, विच इज सम लाइट, जिसके अंदर प्रकाश है, सम गुडविल, एंड विच प्रिसाइसली इज इन लव विथ प्रोग्रेस, उस पार्ट को सबसे पहले, और ये पार्ट भी जीवन भर कोई स्टेटिक थोड़ी रहेगा। जब आप यात्रा करते जाएंगे तो आज जिसको आप गॉड बोलते हैं या जिसको देवता बोलते हैं, जब आप असेंड करते हैं तो आपका जो देवता का या जो आपका आइडियल जो है परफेक्शन का, वो भी तो रिलेटिव है, वो चेंज होता रहता है। आज आपका जो आइडियल है वो कल को वो आइडियल नहीं रहेगा। जब आप प्रोग्रेस करेंगे वो आइडियल और उससे ऊपर चला जाएगा। इसलिए तुरंत के अंदर मनुष्य जाति जिसको गॉड बोलती है वो तो सुप्रामेंटल है, जिसके अंदर ओमनी प्रेजेंट है, मतलब जो सब जगह व्याप्त होता है, जो सर्वज्ञ है, मतलब ओमनीसियंट है, जो सब कुछ जानता है, और जो ओमनीपोटेंट है,
ओमनीपोटेंट का मतलब जो सर्वशक्तिशाली है, उसी को फिलहाल हम गॉड बोलते हैं। तो ऐसा गॉड जो हमारे लिए, जिसको मनुष्य जाति ने आज तक कंसीव किया है, वो श्री अरविंद कहते हैं कि सुप्रामेंटल है। पर ये विकास की कोई अंतिम अवस्था तो है नहीं। आध्यात्मिकता की ये पहली सीढ़ी है या पहला सोपान है, जहां आध्यात्मिकता अपने पंख फैला के उड़ने का प्रयास कर सकती है। उससे पहले तो आप इतने बंधे हुए हैं कि जिस आध्यात्मिकता की हम बातें करते हैं, उसको आज तक भी पृथ्वी के ऊपर और सच्चे रूप से कोई आधार मिल नहीं पाया है। अब यहां तक जो अपन ने बात करी उस विषय में, क्योंकि ये तो बहुत ही फंडामेंटल बातें आने शुरू हो गई है, क्योंकि ये तो जीवन के विषय में हो गई। इस बारे में कोई बात हो पहले तो वो देखते हैं, और नहीं हो तो आगे चलते हैं। भैया मैं कुछ बोल हाँ, भैया थोड़ी देर पहले शुरू जिस टॉपिक से हमने किया था कि जो चीजें हम करते हैं, क्या वो हमारे जो हमने एम या जो आइडियल अपने सामने रखा है उसके कंफर्मिटी में वो चीज है कि नहीं, वो उससे मेल खाती है कि नहीं। तो बहुत बार ऐसा मतलब नहीं ही होता है कि हम रेफर नहीं करते हैं जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एक्शंस कर रहे हैं अपने ट्रू जो हमारा एम है। बहुत बार ऐसा होता है हम चेक नहीं करते, लेकिन कई बार अगर चेक करते हैं सिंसियरली, क्योंकि हम चाहते हैं खुद को देखना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है। और जब हम देखते हैं कि हमने जो एक्ट किया वो हमारे हाईएस्ट जो हमारा जो एम है, हम जो लक्ष्य लेकर या हम जो जहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं या हम जो करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट नहीं, मतलब वो बहुत ही डरावना एक मतलब एक ऐसा रहता है कि हमने जो किया उस और वो जो हमारा आइडियल है। तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि डर के कारण की, क्योंकि मजबूरी हो जाती है, कई बार ऐसे एक्शंस हम ऐसे मूवमेंट हो जाते हैं, लोगों के साथ है, उठना बैठना है, बहुत तरह की चीजें जो कई बार हम हमारे आइडियल के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और जब हम ट्रूली जब खुद को वॉच करते हैं तो वो जो एक सीन दिखता है वो बहुत डरा देता है। तो भैया ये चीज क्या है, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, टू स्टार्ट विथ, इसके अंदर जो हमारा आइडियल का फॉर्मुलेशन है, हमने जो एक आइडियल लिया है वो फॉर्मुलेशन छोटा है। तो इसलिए कितनी सारी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो उस फॉर्मुलेशन, क्योंकि वो फॉर्मुलेशन अपने आप के अंदर सीमित है, इसलिए आपकी सारी एक्टिविटीज उस फॉर्मुलेशन के दायरे में नहीं आ सकती। क्योंकि आपका लाइफ जो तत्व है वो एक चीज अभिव्यक्त करना चाह रहा है, आपका शरीर है वो दूसरी चीज अभिव्यक्त करना चाह रहा है, आपका पूरा बीइंग है ये एक तरीके से सिंबल है एक हायर ट्रूथ का, आपका पूरा बीइंग है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी है आपके सोल की। आप उस बारे में कॉन्शियस नहीं हैं, पर सोल उस बारे में एक विशेष तत्व है उसके अंदर, भगवान का। उस तत्व को आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक तरीके से उस कॉम्प्लेक्सिटी को, आपकी साइकोलॉजी जो है, आपकी जो फिजिकल फ्रेमवर्क है, आपका मानसिक भावात्मक सारा जो फ्रेमवर्क है, आपके बीइंग्स के अलग अलग लेयर्स हैं, ये सारे इस तरीके से हैं मानो उस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हों। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने जो एक आइडियल का फॉर्मुलेशन कर रखा है, थोड़ा सा इसको अभी तुरंत ही सब्जेक्टिवली या साइकोलॉजिकली फील करके देखो कि हम, पहले बात तो एक परफेक्शन का हमारा जो आइडियल है
उस बारे में भी पूरे सचेतन नहीं हैं। आप अपने आप को अगर कहें कि ये परफेक्ट स्थिति है, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं या अपने आप को उस स्थिति के अंदर, मतलब आप क्या सोचते हैं अपने आप को जब आप परफेक्ट होंगे? तो वो उस बारे में हमारे विचार अभी स्पष्ट नहीं हैं। तो सबसे पहले तो जो हाईएस्ट आइडियल है उसका फॉर्मुलेशन हमारा अभी नाकाफी है, अभी सीमित है। इसलिए हमारे जीवन की सारी क्रियाएं, प्रक्रियाएं, उससे ये बड़ी ग्रेस है माँ की कि वो उसके दायरे में नहीं आ सकती। क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी या जो पहेली आप सोल्व कर रहे हो वो आपके सोच समझ से बहुत दूर की बात है, एक चीज। पर आदमी शुरू कहाँ से करे? तो अब जो ये आइडियल की बात चल रही है, ये आइडियल इस तरीके का नहीं है कि मैंने कोई मानसिक आदर्श रखा। हालांकि शुरू तो व्यक्ति, नैतिकता तो एक चीज ही ऐसी है कि आप मानसिक आदर्श रखते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए या मेरे को ऐसा करना चाहिए। पर जब तक बुद्धि के साथ, क्योंकि देखिए बुद्धि एक चीज है और हृदय दूसरी चीज है, जब तक हृदय उसके साथ नहीं आएगा तब तक आपके संस्कार की प्रक्रिया, जो आप बच्चे के अंदर जो संस्कार डालने की प्रक्रिया करते हो, वो कभी भी नहीं हो सकती। और ये ही माँ कहती है कि अनुशासन, जो वेस्ट में और आजकल प्रचलित रूप से जिसको एटिकेट्स या जिसको हम और दूसरी चीज कहते हैं, उसमें ये एक बड़ी भारी समस्या है। क्योंकि आप बाहरी रूप से उस पे थोपने का प्रयास करते हैं कि भाई ये इस तरीके से अनुशासन करो, और वो अनुशासन किसी न किसी रूप के अंदर किसी भय के कारण या सामाजिक दबाव के कारण या और कोई भी सूक्ष्म उसका कारण हो, तो जैसे ही वो कारण आप हटा देते हैं उसके ऊपर से, तो वो अनुशासन आप लागू नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आप किसी भय के कारण वो अनुशासन को लागू करते हो, जैसे ही वो भय का कारण हट जाता है, वैसे ही जो आप जिसको एटिकेट्स या वेल मैनर्ड कहते हो या मैनर्स कहते हो, वो कोड ऑफ कंडक्ट तो आप कभी भी पालन नहीं करते। और इसीलिए जिसको हम करप्शन बोल रहे हैं देश के अंदर, भाई मेरे को दंड नहीं हो वैसा काम करो या मैं पकड़ा नहीं जाऊं। पर अगर अंदर से आपकी प्रकृति ही आपका विरोध करती हो कि ये काम मैं कर ही नहीं सकता, तब सच्चा मूलभूत परिवर्तन देश के अंदर आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि भी ये व्यक्ति भाई और करेगा क्या, जब उसको खाली भय के कारण उसने अपने आप को रोक रखा है। तो जब वो भय नहीं रहेगा या जो वो कर सकेगा, जितनी चीज वो लूट सकेगा, आप जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सपोज आप कपड़ा बना रहे हो, तो उसकी क्वालिटी में पकड़ में जितनी चीज नहीं आएगी, कंपनी उतना तो उसमें कर ही सकती है घोटाला। जब तक वो पकड़ में नहीं आएगी तब तक वो चलता रहेगा। पर जब तक आपकी खुद की जो आंतरिक जो नेचर है, जब उसका विरोध कर बैठेगी, तब आप वो काम नहीं करोगे। इसलिए एक चीज तो ये है कि आपका जो इसमें फ्रेमवर्क जो आप कह रहे हैं कि ये चीजें हमारी इसके अंदर नहीं आती, बुरी लगती है हमको, तो ये चीज आप कर नहीं सकते इसके अंदर, क्योंकि आपका जो इसके अंदर फॉर्मुलेशन है वो अभी लिमिटेड है। एक सेकंड रुको आप। हेलो। तो ये जो आप पूछ रहे हैं कि वो चीज हमारे उस दायरे के अंदर नहीं आती, तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि वो, ये एक सेविंग ग्रेस है कि वो उस दायरे में नहीं आती, क्योंकि हमारा आइडियल का फॉर्मुलेशन सीमित है। हम अभी क्लियर नहीं हैं हमारे आइडियल के बारे में। इसलिए पहली जो प्रक्रिया ये करनी है कि हम अपने हृदय से और उस आइडियल को या जो गोल है हमारे जीवन में,
देखिए उसका एक बहुत सीधा मापदंड ये है कि जब तक आप उसके अलावा कोई दूसरी चीज कर सकते हो, मतलब जो आपने आइडियल रखा वो इतना ज्यादा आपको अभिभूत कर देता है, इतना ज्यादा आपको एनग्रोस कर देता है, इतना ज्यादा अपने आप को ले लेता है, जैसे देश के प्रति श्री अरविंद ने था वो, या जो ओलंपिक्स में कोई प्लेयर जाता होगा उसके क्या कोई दूसरा भाव आ सकता है? या वो अगर वास्तव में उसके मन में कोई डबल स्टैंडर्ड्स या कोई कंफ्यूजन तरीके की चीज हो तो वो कभी भी और उन हाइट्स के ऊपर जा नहीं सकता। बिजनेसमैन के अगर दोहरे मापदंड या दोहरी चीजें या दोहरे आदर्श चलते होंगे तो वो कभी भी अपने बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए आप अगर कहते हैं कि हमारा आइडियल, तो पहले उसके इम्प्लीकेशन से पहले तो हम ये देखें कि आइडियल हमको कितना मूव कर पा रहा है। क्या वो खाली एक, और क्योंकि अभी हम क्लियर ही नहीं है उस बारे में, फिर उसके जो इम्प्लीमेंटेशन की बारी है उसकी, तो उसको इम्प्लीमेंट करना उसकी नेक्स्ट स्टेज है। हमने जो भी आदर्श लिया अब उसको इम्प्लीमेंट हमको करना है। तो जो भी हमारे पास सिंसियरिटी है या जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, जो हमको विल पावर दी गई है, जो हमारी हमको इच्छा शक्ति मिली है, तो वो उसमें लगाना तो पहली चीज जरूरी है, अदरवाइज तो वो हो ही नहीं सकता। पर इसके अंदर समस्या आप उसमें लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो वो इसकी है। जिस आदमी को देखिए कि संगीत बहुत अच्छा लगता है वो रह ही नहीं सकता, या जिसको जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है उसके लिए अपने आप को उसमें झोंक देने में उसको ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जो चीज आपको पसंद है उसके लिए नेसेसरी एनर्जी भी आ जाती है, समय भी आ जाता है, रिसोर्स भी आ जाता है। इसलिए जो मूलभूत प्रश्न अभी ये है कि जिसको हम आइडियल मान रहे हैं उस बारे में हम अभी क्लियर नहीं हैं। वो एक इम्प्रेशन के तरीके का है, इसलिए पहली चीज है कि जिसको हम आदर्श मान रहे हैं उसको मांझें, उसको साफ करें। तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी जरूरी है कि वो आदर्श हमको मूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अभी अगर मूव नहीं कर पा रहा, इसीलिए तो इतनी हमको संघर्ष करना पड़ता है। जिन चीजों के अंदर आपका मन सहज रूप से लगता है उसमें तो देखो आप अपने आप एनर्जी मिलती रहती है आपको, आप अपने आप उसके अंदर काम करते हैं। इसलिए ये एक थोड़ा सा क्लैरिटी होनी जरूरी है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात स्पष्ट है? हेलो। हेलो। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अभी तक मैंने जो कहा वो सुन रहा है आप लोगों को? हेलो। हाँ भैया, आपकी आवाज तो बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हमें हमें सुनाई दे रही है आपकी आवाज। हाँ, तो अभी जितना भी मैंने इस बारे में जो बोला उस बारे में प्रश्न या जो मैंने अभी जो बात कही क्या वो स्पष्ट हो पा रही है? हाँ भैया, बिल्कुल ही स्पष्ट हो पा रही है। क्योंकि सबसे पहली समस्या जो जीवन के अंदर ये चल रही है कि जिस आदर्श की या जिस पूर्णता की बात करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम उस पूर्णता के ऊपर अपने आप को एक चित्रण करें कि हम उस पूर्णता की स्थिति में हैं, तो हम क्या अपेक्षा रखते हैं अपने आप से या क्या आशा करते हैं कि हम कैसे होंगे। क्या इस बारे में हम क्लियर हैं?
अगर क्लियर नहीं है तो इसका मतलब वास्तव में हम अभी उस उद्देश्य के विषय में, या उस उद्देश्य जो परफेक्शन का गोल हमने जो रखा है उस बारे में हम वास्तव में क्लियर नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, या जिस उद्देश्य की हम उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं। भाई जैसे मैंने किसी माउंटेन टॉप की बात करी कि उस चोटी के ऊपर मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं यहां होऊंगा, या मेरे को कोई तो कुछ तो पता होना चाहिए। तो आपने कोई गोल लिया तो आप पहले अपने आप को वहां रख के तो देखिए। जैसे आपने सपोज, और ये ही चीज तो मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाती है, जो अपने आप को अमुक स्थितियों के अंदर रख के पहले ही देख सकता है कि मैं अपने जीवन का अगर ये उद्देश्य चुनता हूं और अपने आप को उस उद्देश्य के अंदर रखता हूं, तो ये कंडीशंस तो मेरे ऊपर लागू होंगी, तो क्या मैं उनको सहन कर पाऊंगा? जैसे कोई व्यक्ति माँ के रास्ते के ऊपर चल रहा है, वो अब ये सोचे कि मैं ये व्यापार करता हूं या मैं पर्टिकुलर ये काम करता हूं। जब अपने आप को व्यक्ति उस स्थिति में रख के देखता है, तब पहले ही वो ये कल्पना कर सकता है या ये सोच सकता है, समझ सकता है कि उन स्थितियों की ये डिमांड्स होंगी, तो क्या वो उसको पूरा कर पाएगा, या क्या वो उसके गोल के लिए सही होंगी। यही चीज तो तुरंत मनुष्य को कोई, अदरवाइज तो आप पूरे जीवन क्या एक्सपेरिमेंट थोड़ी करते रहेंगे उन स्थितियों में अपने आप को रख के देखने में। आप ये कहें कि मेरे को कोई पॉलिटिशियन बना दो या मेरे को कोई डॉक्टर बना दो, वो एक उद्देश्य पूरा करने के बाद मैं एक फिलोसोफर भी हो जाऊं मैं, या ये एक्टिविटी भी करूं, या मैं एक संगीतकार होऊंगा, तो मेरे जीवन में क्या क्या होगा। आप अपने आप के उद्देश्य के अंदर अपने आप को ढाल के और ये अवश्य देख सकते हैं, और ये मनुष्य के अंदर जरूर होनी चाहिए मानसिक क्रिया तो। इसलिए जिस आदर्श को आपने अपने सामने रखा है, उसमें जब तक आप अपने आप को रख के देख नहीं पाते, और वो आदर्श आपको इतना ज्यादा एन्चांटिंग, इतना आपको अभिभूतकारी, इतना ऐसा नहीं लगता कि आप उसकी तरफ जाने से अपने आप को रोक ही नहीं सकते, कि जैसे ही आपको थोड़ा सा समय मिला आप उसके अंदर अपने आप को लगा देते हो। जब तक ये स्थिति नहीं है, तब तक ये कहना कि ये मेरा आदर्श है, ये अभी तक उसने हमारे हृदय को अभी तक पूरी तरीके से पकड़ा नहीं है। अगर ये अभी तक स्थिति नहीं है कि आप जो कहते हैं कि मेरी बाहर की ये कमिटमेंट्स हैं, मेरी ये बाध्यताएं हैं, मेरी ये मजबूरियां हैं, पर जब आपकी वो मजबूरियां, आपकी जो व्यस्तताएं, आप जो भी प्रोफेशन आपने अपना रखा है, आपकी जो ड्यूटी है, सपोज आपने 8 घंटे या 10 घंटे या जितने भी घंटे वो ड्यूटी पूरी करी, तो आपका प्री ऑक्यूपेशन, आपके मन के पीछे आप क्या उस आदर्श के लिए लालायित रहते हैं? जैसे एक कोई हाउसवाइफ अगर काम भी करती है ऑफिस के अंदर, बैक ऑफ द माइंड उसके क्या रहता है? मेरे को घर पे जाना है, मेरे को अपने बच्चों की देखभाल करनी है। उसको अपने परिवार का जो है प्री ऑक्यूपाइड रहती है वो उसके साथ। वो कहीं भी रहे उसकी व्यस्तता अपने परिवार के साथ होती है। या जो एक कोई वास्तव में आर्टिस्ट है, वो कोई दूसरा काम भी कर रहा है, पर उसका जो प्री ऑक्यूपेशन है, उसकी व्यस्तता उसकी आर्ट में होती है, सच्चे आर्टिस्ट की। तो जिस तरीके से एक जो फ्रीडम फाइटर है उसकी व्यस्तता अपने देश के साथ रहती है, वैसे ही जिस आदर्श की हम बात करते हैं, क्या सारे काम के अंदर हमारी व्यस्तता उसमें होती है? ये हम खुद को टटोल के ये देखें कि मेरे को मेरे काम से जैसे ही फुर्सत मिली मैं तुरंत माँ के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करूं। जैसे ही मैं किसी दूसरी एक्टिविटी से मेरे को थोड़ा समय मिलता है, तो मैं उस समय को किस व्यस्तता के अंदर डालता हूं, वो मेरे को तुरंत ये प्रमाणित कर देगा कि मैं वास्तव में उस बारे में सीरियस हूं, या वो चीज मेरे को, मेरे हृदय को इतना पकड़ती है। तो वो तुरंत हमको ये पता चल जाएगा कि जो हम बातें कर रहे हैं, इतनी विभ्रम की स्थिति है, इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, जो कोई एक ओर खींचता है, कोई दूसरी ओर खींचता है।
और ये ही हमारे जीवन का मेन जो इतनी सारे समस्याओं का कारण है, क्योंकि वो चीज हमारे हृदय को अभी तक इतना ज्यादा मूव कर नहीं पा रही। अगर वो हमारे हृदय को मूव कर पाती तो आपको कोई दूसरी चीज नजर आ ही नहीं सकती थी। आप ये कहते हैं कि मेरे को कोई दूसरी चीज नजर आ रही है, जैसे कोई हाउसवाइफ है, अगर उसको कोई दूसरी चीज नजर आ रही है और परिवार के प्रति उसकी व्यस्तता नहीं है, तो वो कभी भी सच्चे रूप से अपने परिवार का भी भरण पोषण नहीं कर सकती। तो आप देखिए कि उसकी व्यस्तता कितनी अपने बच्चों के प्रति होती है। वो सुबह अपना बच्चों का टिफिन बना के जाएगी, वापस अपने समय को इस तरीके से मैनेज करेगी, पूरे घर के सारे कामकाज को ऐसे मैनेज करेगी अपने ऑफिस टाइम के साथ साथ। और ऑफिस में रहने के बावजूद भी उसकी जो निष्ठा है, अगर कोई ऐसा उसको चयन करना पड़े तो वो अपने ऑफिस की बजाय अपने परिवार का चयन करती है। वो अपनी नौकरी को छोड़ देगी पर परिवार को थोड़ी छोड़ देगी। उसी तरीके से जब आपके पास ऐसा कोई कॉल हो माँ का, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जैसे वो एक गृहिणी, एक सामान्य कोई गृहिणी है, उसमें जितनी अपने परिवार के लिए वो प्रीऑक्यूपेशन है, तन्मयता है, उससे जो जुड़ाव है, उतना हमारा हमारे लक्ष्य के प्रति जुड़ाव है कि तुरंत हमारा समय या हमारा जो मन है वो रमा रहता है हमारे उस उद्देश्य के अंदर। तो ये एक्टिविटी हमारी शुरू हो सकती है। तो हम अपने उद्देश्य के प्रति हम कह सकते हैं कि उनको हम इस जज के सामने से गुजारें। अदरवाइज उस जज ने एक निर्णय सुना भी दिया तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आपका मन तो है नहीं उसके अंदर। इसीलिए सारी सुविधाएं, सारी चीज संसार में होने के बाद भी जिनको जो करना होता है वही तो करते हैं। भाई ये पहले तो सुविधाओं का या अभाव पहले तो लोग कह सकते थे। अभी इस ग्रुप की भी हम बात करें, जहां से हमने शुरू किया, आज ये अपन चर्चा परिचर्चा तो उपलब्ध है, पर कितने जने हैं जिनको पता होने के बाद भी उसके लिए समय निकालने की इतनी सिंसियरिटी बटोर पाते हैं? आप ये तो तुरंत उदाहरण देख ही पा रहे हो। इसलिए ये कहना कि हम तो माँ के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं, जीवन छोड़ो 1 घंटा निकालना नहीं होता व्यक्ति से, और उसमें जो जो वो कारण देता है, अब वो उसकी चेतना के लिए तो उसको हो सकता है उसको सही लगते होंगे, पर सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ सकता है कि ये समय तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम सिंसियरली उन मूवमेंट्स को देखें और हमको वो काले धब्बे नजर आते हैं, पर सच्ची बात तो ये है कि हमारी जो विल पावर है उस वो तो कहीं और लगी हुई है। उसकी शादी, हमारी जो विल पावर है उसकी शादी तो हमारे जो बाहरी सेल्फ है उसके साथ हो रही है। तो हमारा जो हृदय है वो हमारे सरफेस सेल्फ के साथ वेडेड है, उसमें तन्मयता है। इसलिए अपने को नेसेसरी एनर्जी नहीं मिल पाती। अगर उसकी तन्मयता, हमारे हृदय की तन्मयता हमारे उद्देश्य के साथ होगी, तो इतने सारे प्रश्नों की और इतनी सारी चर्चा परिचर्चा की फिर तो जरूरत नहीं होती ना। जैसे आप किचन के अंदर आप एक आइडियल थोड़ी लेके जाते हैं कि ये पकाना चाहिए या नहीं चाहिए। तब तो आप ये कहते हैं कि उपलब्ध क्या है, अभी ये वाली सब्जी उपलब्ध है, मेरे को खाना पकाना है। फिर आप प्रक्रिया की बातें करते हैं, फिर आपके प्रश्न कितने चेंज हो जाते हैं। जो खाली पाकशाला की बात करते हैं सिद्धांत के रूप में, उनके प्रश्नों में, और जो रसोई में एक व्यक्ति खड़ा है और उसमें काम कर रहा है उसके प्रश्नों में रात दिन का अंतर होता है। वो जो प्रश्न करता है वो प्रक्रिया के प्रश्न करता है। इसलिए जो एक साधक है वो जो प्रश्न करता है वो प्रक्रिया के प्रश्न करता है उसमें, और एक जो शॉपिंग कर रहा है उसके व्यक्ति के अंदर प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये हम पहले तो टटोलने की कोशिश करें कि क्या उस चीज ने अभी तक हमारी तन्मयता को इतना ग्रहण किया है, उतनी ग्राह्यता क्या उस उद्देश्य की हुई है, या क्या जिसको हम उद्देश्य बोलते हैं उस बारे में हम क्लियर हैं, या जो मान लिया हमने कि जिस पूर्णता का उद्देश्य हमने लिया और मैं आज उस पूर्णता के शिखर पे पहुंच चुका हूं, तो मैं क्या आशा करता हूं कि मेरे को आज कैसा होना चाहिए, कि मेरे मन में ये फर्क आना चाहिए, मेरे शरीर के अंदर ये विकास हो जाना चाहिए, या मेरी भावनाएं इस तरीके की होनी चाहिए।
क्या आपके अंदर उस चीज की क्लैरिटी है? तो इसीलिए हम अपने उद्देश्य के बारे में वास्तव में अभी जान नहीं पा रहे, हम क्लियर नहीं हैं उस विषय में। अब इसके विषय में अब कोई प्रश्न हो, क्योंकि अगली बार हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, ये जीवन की मूलभूत चीज है। मेरे ख्याल से आज जितनी भी बात है, अगर हम एट हार्ट इसको लें तो ये पूरे जीवन के अंदर फर्क कर सकता है, उसके अंदर अंतर ला सकता है, क्योंकि ये हम सबके साथ ये सारी समस्याएं हैं। इसमें कोई बात है मारोदिया जी आपके पास? आपका माइक बंद है, आपकी आवाज आ नहीं रही। जी, बात मुझे ठीक लग रही है, कोई दूसरी कोई बात नहीं कहनी है मुझे, लेकिन इस तरह से जीवन को सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रयास करूंगा। अपराजिता कोई बात है इसमें? तो स्नेहा, ये जो अपन बात कर रहे हैं, क्या ये क्लियर है क्या? हाँ भैया, बहुत क्लियर है। बहुत सारी चीजें जो भी आज हमने डिस्कस किया है ये बहुत काफी। फंडामेंटल चीजें हैं, जी इसके हाँ, बारे में बहुत। बहुत ज्यादा जब तक, सोचने हाँ की हाँ भैया, जरूरत है। तो ये जैसा तो कि आपने, मूलभूत चीजें हैं। हाँ भैया, जैसा कि आपने वो बताया कि जब तक हम इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि हम लोग को अपने सच्चे उद्देश्य के बारे में ही जब हम जागृत नहीं हैं और वो चीजें उसकी कंफर्मिटी में नहीं है, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और बहुत उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें अभी हम लोगों ने आपने समझाया, तो मुझे लगता है आज हम लोग इस, जिसको हम अभी उद्देश्य कह रहे हैं, वास्तव में तो वो हमारे हार्ट को मूव नहीं कर रहा ना। हमको अगर जिस उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं उसके अलावा भी जीवन में कोई चीज नजर आती है, तो अभी तक वो हमारा सच्चा उद्देश्य बन नहीं पाया है। हो सकता है उसका कोई इंप्रेशन हो, और जब तक वो मेरे कर्म को मूव नहीं कर पा रहा, मेरे हृदय को मूव नहीं कर पा रहा, मेरे को अभी भी जीवन के अंदर कोई दूसरी चीज अगर नजर आ सकती है, तो इसका मतलब वो अभी मेरा सोल प्री ऑक्यूपेशन है नहीं। अभी भी मेरा जो है, मेरे जो हृदय है या मेरी जो अंदर अभी है, उसका तो मन अभी बाहरी प्रकृति में ही रमा हुआ है। अभी तक मेरा वो उद्देश्य बन नहीं पाया है। अगर मैं उन्हीं चीजों में मेरा मन रम रहा है और मेरे हार्ट को वो उद्देश्य मूव नहीं कर रहा है, और इसीलिए तो मेरा जीवन देखो ऐसा है, इस तरीके का मेरा जीवन जिस तरीके का है, वो इस कारण है क्योंकि हमारा जो फ्रेमवर्क है, हमारा प्रीऑक्यूपेशन वैसा है। इसके लिए किसी और को ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जीवन ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको वैसा ही अच्छा लग रहा है, इसलिए वैसा है। इसमें किसी और के ऊपर ब्लेम करने से, ये कहने से कि कोई और के कारण मेरी प्रगति रुकी हुई है, या ये चीज और हो जाती तो मेरी प्रगति हो जाती, ये संभव ही नहीं है। ऐसा है ही नहीं। अभी हमारा हार्ट जो है, वो हजारों तरीके की चीजों के अंदर व्यस्त है। वो एकमात्र जो है माँ में व्यस्त होगा, और माँ के दृष्टिकोण से चाहे हजार चीजों में हम लगेंगे तो एक अलग बात है, क्योंकि और दृष्टिकोणों के अंदर हम जाएंगे तब माँ लास्ट प्रायोरिटी बसती है हमारे जीवन की। और जब हम माँ को अपने आप को पूर्ण रूप से दे देंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से दे देना भी तो अभी हमारे लिए एक शब्द है, पर कम से कम उस चीज का संकल्प करके जब हम शुरू करें, तो माँ को इतनी तो समझ होगी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैसे काम में लेना है, वो अपने आप काम में लेगी। उसको जो एक्टिविटी करवानी होगी, जो जैसा करवाना होगा, वो अपने आप उसको काम में ले लेगी। इतनी सामर्थ्य तो माँ में होनी चाहिए।
अगर इतनी काबिलियत भी माँ में नहीं है तो फिर ऐसी माँ को हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो तो एक कोई ऐसी काल्पनिक चीज हुई जिसको हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, या इतनी निष्प्रभावी चीज हुई जो आप जिसको समर्पित कर रहे हैं और वो आपको उपयोग में भी नहीं ले सकती, तो ऐसी चीज को तो समर्पित करना भी नहीं चाहिए। तो ये तो एटलीस्ट कम से कम इतनी श्रद्धा तो हो कि अंदर से जो एस्पिरेशन है डेली हम उसको मांजना शुरू करें। जैसे बर्तन को हम रोज मांजते हैं, इस एस्पिरेशन को नित प्रति, और उसको मांजने का एक ही तरीका है, पहले तो श्री अरविंद और माँ के जो शब्द हैं उनका नित्य जो सेवन है, उनको जो डेली उनको लेना है, अंदर उनके प्रकाश में जाने की जो जो प्रक्रियाएं, जो जो चीजें हमको उस ओर ले जाती है, उनको तो हम डेली और उन्हीं को बढ़ाएं, उन सारी चीजों को अपने जीवन में ज्यादा करें। इसमें अगर कोई प्रश्न है, क्योंकि इससे संबंधित तो आगे अपना डिस्कशन बहुत है, बहुत ज्यादा डिस्कशन है। हाँ भैया, मुझे हेलो। हाँ जी नंद किशोर जी। हाँ, मुझे लगता है ऐसा, जो मुझे फीलिंग होती है कि जैसे हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो जो हम जो है वो निम्न प्रकृति के घेरा इतना अधिक घना है कि हम चाहते हैं, लेकिन वो हमको खींच खींच करके फिर से वो नीचे के लिए और गिराने के लिए तत्पर होती है। तो जो मैंने अनुभव किया है कि माँ को पुकारना, जैसे भौतिक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में फैले हुए जिस तरीके से अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार से जो माँ की लाइट है, प्रकाश है, अगर हम आकुल व्याकुल होकर के माँ को पुकारते हैं और जब उनका प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश करता है, तो धीरे 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 हमारा अंधकार, जो निम्न प्रकृति की पकड़ है, जो हमें चारों तरफ से खींचती है, हमें बांध करके रखती है, उसकी गांठें ढीली पड़ेगी और धीरे धीरे हम उस ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन यह है कि माँ को आकुल व्याकुल होकर के पुकारना और माँ का आह्वान करना, ताकि उनका प्रकाश हमारे भीतर में आकर के हमारे अंधकार को दूर करे। हाँ, ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उनके प्रकाश के लिए या उनकी कृपा के लिए सतत पुकार तो जरूरी है ही है। पर देखिए, इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी चीज जो हमको बाहर से चाहे पीड़ा दे रही है, चाहे हम उसको निम्न प्रकृति कह रहे हैं हम, या उसको जो भी नाम देते हैं, वो आवश्यक है। वैसी प्रकृति भी आवश्यक है, क्योंकि हम एक छोटे से समाधान से अपने जीवन को उस फॉर्मुलेशन के अंदर नहीं डाल सकते। तो इसलिए हमारी निम्न प्रकृति तुरंत हमको चेक कर लेती है। ये हमारी क्वालिटी कंट्रोल भी है एक तरीके से, कि जहां अपरिपक्व कोई चीज है, अगर वो व्यवधान न होता और इस तरीके से आपकी निम्न प्रकृति तुरंत आपको नीचे नहीं खींच ले आती, वो आपको बार बार ये भी रिमाइंड करती है कि आपने जो अभी सॉल्यूशन दिया है, क्योंकि हर जना अपने तरीके से कोशिश तो निश्चित रूप से कर रहा है, सर्टेन रूप से वो अपनी एस्पिरेशन भी कर रहा है, वो अध्ययन भी कर रहा है, भाई हर जना प्रयास कर रहा है। पर ये जो चीजें जो आपको नीचे खींच ले आती हैं, वो आपको ये भी तो आपको कॉन्शियस करती हैं कि आपने जो एक सर्टेन ढांचा बनाया है, या जो आपने एक सॉल्यूशन किया है, वो सॉल्यूशन से ये सारी चीज पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि आप स्वयं अपने अंदर एक ऐसी चीज कैरी करते हैं, एक ऐसी सत्ता आप अपने अंदर कैरी करते हैं जो किसी छोटे से समाधान के अंदर नहीं आ सकती। भाई बहुत सारे अगर पजल के अंदर टुकड़े हों, आप उसके अंदर 5-7 टुकड़ों को जोड़ के अगर ये आश्वस्त हो जाएं कि मैंने पूरी पजल को सोल्व कर लिया, तो वो एक बच्चा तो कह सकता है कि मैं इससे बस प्रसन्न हूं, पर माँ उसके बारे में उस बच्चे को आश्वस्त होने नहीं देती। इसलिए बहुत अच्छा है ये कि हमारी निम्न प्रकृति बार बार हमको सचेत बना देती है, और कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन है उसको तोड़ के तुरंत फेंक देती है
कितनी बार गहरे भाव हमारे अंदर आते हैं, पर लाइफ तत्व जो हमारा अंदर है वो इतना प्रबल है कि वो किसी भी मंत्र तोड़ के आपने कोई भी आदर्श बनाया, देखिए आप किसी भी आदर्श को स्थापित करके, इसीलिए तो उसकी तरफ चलने में इतना व्यवधान होता है, इतना जोर आता है, क्योंकि लाइफ तत्व है वो एक भगवान की दूसरी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। तो पहली बार ये सारा जो है निम्न प्रकृति का खेल, और सुप्रामेंटल के अंदर सही इस चीज को वो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज का दमन नहीं कर रहे। हम अभी कोशिश कर रहे हैं हमारी चीजों का दमन करने की, जबकि वो ऐसी एनर्जीज हैं, अगर आप उनका दमन करने की कोशिश करते हो तो वो एक विपरीत चीज हो गई। तो इसलिए माँ ही जानती है कि कौन सी चीजों को कितना विकसित होना है, किनको कितना क्या स्थान देना है। तो ये एक बहुत अच्छा भी है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको किसी एक छोटे से निर्णय से, बंधने से रोक देती हैं, और तुरंत हमने जो एक छोटा सा एक दायरा बनाया है उसको तोड़ देती हैं। तो सिंसियर व्यक्ति है उसके साथ ये होता है, जो एक व्यक्ति जो इनसिंसियर है उसके साथ तो ये होता भी नहीं, क्योंकि वो चलता ही नहीं है उसके ऊपर, इसलिए उसके दायरे को तो तोड़ने की माँ को आवश्यकता भी नहीं है। पर जो सिंसियर व्यक्ति है, जिसने पढ़ा और जो समझा कि हाँ मेरी ये एक समस्या है और अब मैंने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, तो तुरंत ही ज्यादा वेग से देखिए कि एक ऐसा तत्व आता है वो तुरंत उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, क्योंकि आपने जिस जो समाधान समझा था वो एक सच्चे दृष्टिकोण से, एक व्यापक दृष्टिकोण से आप अपने आप को जो समझते हैं, आप उतने से सीमित नहीं हैं। आप जिस सत्ता को कैरी करते हैं वो तो बहुत विशाल सत्ता है। हाँ, पर आप सिंसियरली, क्योंकि मैकेनिज्म हमारा ऐसा ही है, हम बाहर से चीजें समझते हैं, जबकि ज्ञान या सारी चीज तो हमारे अपने अंदर है। इसलिए हमको ये लगता है कि इस चीज के अंदर देखिए मैं थोड़ा नीचे गिर गया, तो माँ की कृपा के लिए मैंने आह्वान किया, माँ की कृपा आती भी है और वो हमारे उन संकटों के काल को हमको उससे पार भी करती है। ये सारी प्रक्रियाएं चलती है और इस प्रक्रिया के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा माँ की शक्ति को पुकारते भी हैं और वो हमको इस पूरी यात्रा के अंदर लेके जाती भी है। पर ये चीजें हमेशा ऐसी चलती नहीं, क्योंकि यात्रा में कुछ समय बाद आपको ये भी धीरे धीरे महसूस होता है कि वास्तव में आप जिन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्यादातर तो आप उनसे गहरे रूप से इतने ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है। आपके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, आप उसको, कोई ये थोड़ी है कि आप उसको त्यागने की कोशिश करते हैं। वैसे ही क्योंकि आपको अपनी कई आदतें इतनी अच्छी लगती हैं तो आप उसको त्याग कहते हैं, कि आप प्रार्थना करते हैं माँ से कि मेरी ये आदत छुड़ाओ, क्योंकि वास्तव में आपको वो इतनी पसंद है। किसी को भोजन इतना पसंद है तो वो माँ को प्रार्थना करता है। ये बुरी बात नहीं कि प्रार्थना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे पावरफुल चीज है, पर इसके साथ साथ हमको ये डिसर्नमेंट भी होना चाहिए कि वास्तव में हम घनिष्ठ रूप से उससे प्रेम में हैं, हमको वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम कहते हैं कि हम माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कोई चीज उसको बनाए भी रखना चाहती है, कोई चीज है उसको माँ को प्रार्थना करती है, और तामसिकता है वो ये कहती है माँ तू हटा दे, मेरे से तो हटती नहीं ये चीज, क्योंकि मैं तो इससे इतने प्रेम में हूं। और कोई चीज चुपचाप माँ हटाने की कोशिश करती हो तो उसको रखना भी चाहती है, क्योंकि वो तो उससे प्रेम में है ना। ये सारी बातें आप इस जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो वो आप देखेंगे। माँ कहती है इतनी छोटी छोटी चीजें अंधेरे में छिपी होती है हमारे बीइंग के, और जब आप उसको पकड़ के निकालने की कोशिश करते हो तो वो ये कहती है नहीं मेरे को मत निकालो, बहुत दर्द होता है। जब आप इस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं और उनके बारे में सचेतन हो जाते हैं तो आपकी उन क्रियाओं को बड़ी असहजता महसूस होती है, और जितना आराम से वो आपकी बीइंग में पहले रह पाती थी और आपको पहले अच्छा लगता था कि देखो मैं माँ को पुकार रहा हूं, आपकी वाइटल को ये अपने आप को रोते देख के, अपनी समस्याओं को माँ के सामने रखते देख के वाइटल बड़ी खुश होती है कि आप कितने सिंसियर हैं। वो किसी भी लेवल के ऊपर आपको बेवकूफ बना सकती है, वो एक ऐसी भांड है या एक ऐसी बहुरूपिया है
जो आपको ये कह दे कि आप इतने सिंसियर हैं कि देखिए आप माँ के सामने रो रहे हैं, आप अपनी कमियों को कैसे गिना रहे हैं उसके सामने, और जबकि आपकी वाइटल बहुत अच्छे से जानती है कि मैं क्या हूं, और वो उसमें भी आनंद लेती रहती है, हंसती रहती है। तो वो जो हम पढ़ते हैं कि कुत्ता हड्डी को खा के खुद के ही खून को पी के भी कितना खुश रहता है, वो वाइटल के साथ बिल्कुल वही है। वो सड़ी गली चीज खा के इतनी खुश होती है, वो एक कोने में बैठ के रो के खुद की स्थितियों के ऊपर रोती है तो भी बड़ी खुश होती है, उसको बहुत आनंद आता है एक कोने में बैठ के रोने के अंदर। या उसके ऊपर विजयश्री का ताज भी रखो तो भी बहुत खुश होती है। मतलब किसी भी स्थिति के अंदर आप उससे बच नहीं सकते। तो खाली माँ का प्रकाश और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से कि माँ का काम हम करें, क्योंकि इन चीज़ों के क्षेत्र में जाके और अंधकार के क्षेत्र में आप अंधकार से नहीं लड़ सकते। आप अपने दूषित हाथों से अगर सफाई करने की कोशिश करें तो सफाई नहीं कर सकते। तो इसी फ्रेमवर्क से आप अगर कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। हाँ, पर पुकारना सिंसियरिटी की पहली डिमांड है, तो आप कह रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ जो अभी मैंने बताया वो क्लैरिटी भी होनी साथ में ज़रूरी है, जिससे एटलीस्ट हम कॉन्शियस हों कि ये मूवमेंट्स भी हमारी सत्ता के अंदर हैं। तो इसीलिए इतनी सारी प्रार्थनाएं वगैरह करने के बावजूद भी किसी क्षणिक समय के लिए हो सकता है कि हमको लगता है कि एक कॉम्प्रोमाइज तरीके का जीवन में हो गया, या हो सकता है किसी समय विशेष के लिए वो समस्या भी जिसको हम मानते हैं समस्या, क्योंकि ये तो माँ का प्रकाश ही बताएगा कि वो वास्तव में समस्या है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए चलती ही रहती हैं, और हर साधक की तो ये आम बात है कि प्रार्थना करते हैं तो उसको कृपा मिलती भी है, और जीवन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पर उसमें जीवन में जिस गति से हम चल रहे हैं, हम सारे चाहते हैं कि उसमें इंटेंसिटी आए। हम जिस गति से चल रहे हैं, हम सब चाहते हैं कि वो गति के अंदर, खुद के अंदर, और वो उसी धरातल पे ही ना चले। कि बैलगाड़ी अगर चल रही है तो सबसे पहले तो वो बैलगाड़ी की बजाय टेक्नोलॉजी चेंज हो हमारे मूवमेंट की। साथ ही हम जो एक मूवमेंट हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, मतलब उसी धरातल पे बढ़ रहे हैं, उसकी बजाय हम आरोहण की दिशा के अंदर उस गति को बढ़ाएं। खाली एक धरातल के ऊपर या जमीन के ऊपर ही उस बैलगाड़ी को, या हमने एक अच्छी मोटर कार भी बना दी उसकी, तो भी खाली वो एक समतल सड़क के ऊपर नहीं, वो अब हम कोशिश करते हैं कि वो हमारा कम से कम लॉन्च करे और थोड़ा आकाश में ऊपर उड़ने की कोशिश करे। तो जीवन में आनंद है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं करने की, जीवन में बहुत निधियां हैं। जीवन कोई इसी गति से चलता रहे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें तो छूट जाएंगी। अभी तो कुछ भी चीज़ें नहीं है अपने पास, हमारे सामने तो अभी आनंद है ही नहीं ना। अभी तो खाली रसाकसी है, वही तो केओस की स्थिति है अभी तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। इसको यहीं छोड़ देते हैं। हाँ भैया, इसको यहीं खत्म करते हैं। हाँ, और बाकी इसको आगे अगली बार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। पर इस बारे में आप लोग सतत इंट्रोस्पेक्शन करो, सतत इसका अनुभव लेने की कोशिश करो, अपना सारा समय इसमें डालने की कोशिश करो, जिससे जैसे नंद किशोर जी ने जो बात कही, आप लोगों ने जो जो अपने रिफ्लेक्शंस दिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, हमारी जीवन की पूरी दिशा और दशा को बदल सकते हैं ये चीज़ें। हम जितना ही गंभीरता से विचार करेंगे, हमारे एक एक वीक के अंदर भी, एक एक सप्ताह में मूलभूत अंतर आ जाना चाहिए हमारी चेतना के अंदर। तो ये हम कोशिश करते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं, ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। जय श्री। जय श्री भैया।